beautiful as you are. We are starting the session today. So this is Jivanta from Divine Art of Yoga Center. I start with the prayer. So join your hands next to your heart. So this is the prayer just to say being together and work together so God or universe can merge the energies within us. So sit comfortable, take a one deep inhale. Om Sehna Bhavatu Sehno Bhunaktu Sehviryam Karvavahe Tejasvinadvahit Vastu Ma Vidhi Vishadvahe Om. So we say we are grateful, we are thankful for the life we have. We are thankful for the opportunity we have to enhance this human body, which we got it with all the blessing, which all our efforts, once in a lifetime human body, so we can think about it. So first, before I start the session, we want to do the little bit meditation in the beginning. So what we do in the meditation, we'll ask our body and our mind and our heart to open up to receive whatever we are getting today. So if you don't open your hand, you cannot receive it. So if you don't open your heart, you cannot receive it. So first, what we do, we will little bit meditation. We go within ourselves and look at our breath, because this is what we are discussing today. And we will take a permission from our body and our mind and our from heart to be ready for that. So pointing finger and thumb together, because that take you in deep, and you can put it on your knees. You can close your eyes. Don't worry about anything. Just close your eyes and go within you. Okay, take a one deep inhale and exhale. Like doctor told you all the time, you just listen to me. You don't need to worry about anything. Don't open your eyes. Just give yourself a few seconds. Inhale and exhale. Now I want you to pay attention to your body sitting on the chair, on the bed, or wherever you're sitting. Just feel the chair, your hips sitting on the chair. If you're sitting on the floor, you feel it. Look at the feeling with your closed eyes. Now your attention going towards your feet. Just imagine your feet sitting on the floor. Maybe it's a carpet, maybe you are barefoot, maybe you have a socks, maybe you have some kind of shoes. Feel the touch to the Mother Earth. No worries if you are not on the earth or if you are upstairs. Doesn't matter. The gravity reach out to you. So feel it. Look at your feet with your closed eyes. How they look like. Did you put a nail polish on? Or no nail polish? Or look at your heels with your closed eyes. How they look like. Did you clean them? Is they dried up with the weather or not? Bring the moment when you saw them. Now your attention going towards your cars. When you saw them with your closed eyes, paying attention to them, how they look like. People say that has a second brain. Now your attention going towards your knees, the joints, the perfect joints. Maybe they are working for you, maybe they are giving you a hard time. No matter what, they are there for you. Your thighs, pay attention to your lower back. Relax your lower back a little bit and feel it, the chair you are sitting on. Now your spine, paying attention to your spine with your closed eyes. From Hello, bottom, morning. from I the lower cannot hear back to you. upper back. Hello? Hello? Yes, I cannot hear you. Hello? The shoulder blades,
Look at your shoulder blades. Now your attention going towards your right arm, your elbow, your wrist, and your hand. Now your attention going towards your left arm, your left knee, shoulder, your elbow, and your hand. Now attention going towards your stomach, where the all Good morning. got in. I cannot hear you. Good morning. I cannot hear you. It's okay. Can you keep quiet for a moment? Just be sit with the Hello? closed eyes. Hello? Yes, Miss Because Joy, I understand you cannot hear Neelam. Please turn on, please make your network bandwidth is low, and that's why it may not be working for you. Everyone else can hear Neelam. So just do meditation and put Just your close your attention eyes. to your body. Thank you. Now again, attention going towards your stomach. Maybe you eat something today, maybe not. Look at those intestine in your body working all for you. And your kidneys, your heart, your lungs, your heart full of energy, full of breath. Now your attention going towards your neck, back of the neck, top of the neck, and the forehead, and the eyes, and the face. Beautiful face, individual, nobody else has it. Take a one deep inhale and exhale one more time. Now I want you to touch your right hand, put it on your heart, and over there is the left hand. And say, I am ready to receive what is providing me today. I'm opening my heart to receive it. I'm opening my heart to receive it. So just imagine your heart has a teeny mini windows, they opened up, and then they are happy, they're flourishing, they're ready to receive something to enhance your life, something to make happiness in your life. Put your hands back on your knees. Again, take a one deep inhale and exhale. And slowly, gently, whenever you're ready, you can open your eyes. Welcome to another session of Jivanta. I am wonderful to have awesome speakers, Dr. Anila Kothari. And I see her smiley face right here. She looked beautiful in yellow. And she have a lot of, like, I would say, like, have tons of things inside her, that skinny body. I don't know how, but she's so blessed to be with us. Welcome you. You can unmute yourself, Dr. Anila, and you can introduce yourself. I don't want to introduce yourself, but can you go ahead, introduce yourself? थैंक यू नीलम जी, थैंक यू। ये प्लेटफॉर्म देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ कुछ टाइम से ही मैं जुड़ी हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और आप मेरे ग्रुप में भी हैं इंडिया में, तो आपको अच्छा लगा, इसीलिए मैंने सोचा चलिए यहाँ पर रखते हैं अपन। और मैं करीब 30 इयर्स से ये सब चीजें कर रही हूँ, जिसमें मैं बिना दवा के हम अपने आप को कैसे हेल्दी रख सकते हैं। अब हमारे शरीर के लिए कोई दवा की जरूरत नहीं है। हम बिना दवा के अपने आप को एकदम परफेक्ट रख सकते हैं। और फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली हम बिना दवा के, बिना किसी प्रॉपर हेल्प के रह सकते हैं। और इसी रास्ते पर आगे बढ़ते हुए मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे शरीर को दवा की जरूरत ही नहीं है। बिना दवा के जिस तरह से और लिविंग थिंग रहते हैं, उसी तरह अगर हम प्रॉपर नेचर के साथ रहें तो हम भी हेल्दी रह सकते हैं।
और ये बेसिक जो आज क्लास है हमारी, ये मैं आपको इसके बारे में बताना चाहती हूँ। तो यही हमारा है मन में कि हम बिना दवा के आगे चलें। और ये ब्रीथ का जो हमने आज टॉपिक लिया है वो यही है कि ब्रीथिंग हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए या लिविंग थिंग के लिए सबसे बेसिक जरूरत है। Yeah, अगर I'm gonna. Is it okay to stop you? Just give me a जी second. जी जी I want to mention. I want to mention about the thing like she's doing this for 30 years and she's been doing for different people, and the breath work is amazing to learn it. It doesn't matter about the language or whatever it is. If you have any question, we can take it at the end if you don't understand that one. But the way she gonna explain to you, it's amazing, and I have a really good experience about it. So just be patient about that one. You can write your question on the chat box, or we can talk. And she's talking about the breath work. Go ahead, Anila ji. Yeah, we are ready for you. जी। फिर आपको एक बार धन्यवाद देती हूँ, थैंक्स ये प्लेटफॉर्म देने के लिए। और मेरी कोशिश यही है कि हमारा समाज बिना दवा के रह सके। स्वर यानी श्वास यानी ब्रीथ, ये हमारी कॉस्मिक एनर्जी को हम किस तरह से काम में लेते हैं, ये ही मैं आज आपको बताना चाहती हूँ। कि स्वर मतलब श्वास, ये कोई म्यूजिक के सात स्वर नहीं है, सा रे गामा पा धा नी सा, ये नहीं है। ये हमारी आत्मा की मूक भाषा है। तो हम चलिए इस श्वासों की अनोखी दुनिया में चलते हैं। हम श्वास कैसे लेते हैं ये आप जानना चाहेंगे। हम श्वास लेते हैं, लेकिन हम दोनों नोस्ट्रल से एक साथ नहीं लेते। कभी राइट से लेते हैं, कभी लेफ्ट नोस्ट्रल से लेते हैं। और इसका बैलेंस ही हमें हेल्दी रखता है। अगर राइट से हम ज्यादा लेंगे तो हीट वाली प्रॉब्लम हमको आने लगेगी। अगर हम यहाँ से ज्यादा लेंगे तो सर्दी, जुकाम, खांसी, अस्थमा, इसकी प्रॉब्लम हमको आने लगेगी। तो इसका बैलेंस हमारे लिए सबसे जरूरी है कि राइट और लेफ्ट, इससे हमें बराबर इनहेल और एक्सेल करना है। दिन के समय जब हमारे ऊपर सूरज रहता है, उस समय अगर हमारा लेफ्ट नोस्ट्रल ज्यादा चलता है तो हम हेल्दी रहते हैं। रात के समय जब चंद्रमा आ जाता है, मून आ जाता है, तो हमारा लेफ्ट नोस्ट्रल कम चलाना चाहिए और राइट नोस्ट्रल ज्यादा लेना चाहिए, उसको यूज में ज्यादा लेना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम आसानी से बिना दवा के हेल्दी रह सकते हैं। और ये जो टेक्निक है बहुत इजी है, बहुत आसानी से थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप इसे सीख सकते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने श्वासों के साथ चलना है। ये बहुत पुरानी टेक्निक है। और अगर हम न्यूली बॉर्न बेबी को देखें, वो अगर हेल्दी है तो वो बिल्कुल बराबर नेचर के साथ रहता है और श्वास लेता है। जब उसे भूख लगती है तो उसका राइट नोस्ट्रल चलता है। उसे पानी पीने का मन है या यूरिन पास करना है तो उसका लेफ्ट नोस्ट्रल चलता है। जिन घरों में छोटे बेबी हैं, आप चेक कर सकते हैं। ये सब आदतें हमारी बड़े होने के बाद खराब हो जाती हैं, क्योंकि हम नेचर के साथ रहना छोड़ देते हैं। तो ये एक अमेजिंग साइंस है अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। और अगर ऐसा कहें तो ये हमारी थर्ड आई का काम करती है। इससे आप अपनी डेस्टिनी को कंट्रोल कर सकते हैं। बस श्वास को कैसे लेना, कैसे छोड़ना और किस श्वास के साथ, यानी कौन सा नोस्ट्रल हमारा चालू है, उस समय क्या काम करना,
इस पर अगर हम ध्यान देंगे तो आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, हेल्थ की भी नहीं, वेल्थ की भी नहीं। घर से बाहर जाते समय, घर में काम करते हुए आप अगर थोड़ा सा इसकी तरफ ध्यान देंगे तो आसानी से अपनी इन सारी जरूरतों को पूरा कर पाएंगे। क्योंकि अगर हम नेचर के साथ आ जाते हैं तो हमारी सबसे अच्छी आसान जिंदगी हमारी चलने लगती है। क्योंकि हमारी पूरी बॉडी हमारी एनर्जी पर टिकी हुई है। अगर बॉडी में एनर्जी है तो हम सही तरीके से काम कर पाते हैं। अगर शरीर से प्राण निकल जाए तो एक उंगली भी हमारी हिल नहीं पाती। पूरा शरीर तो छोड़िए, कुछ भी चीज हमारी नहीं हो पाती। जब हम यहाँ इस धरती पर आए तो सबसे पहले हमारा श्वास चेक किया गया। जब हम यहाँ से जाएंगे तब भी लास्ट मोमेंट भी यही होगा कि हमारा श्वास चेक किया जाएगा कि है या नहीं है। तो ये हमारी एक बेसिक जरूरत है। आइए सब जने एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हमारा कौन सा श्वास अभी चल रहा है। एक्सेल, इनहेल अभी नहीं, अभी सिर्फ हम एक्सेल करेंगे। फुल पूरा भरिए श्वास को और भर के यहाँ दोनों ऐसे उंगलियां रखिए और प्रेशर से छोड़ दीजिए। इनहेल करिए और प्रेशर से छोड़ दीजिए। आप देखेंगे एक नोस्ट्रल से फ्री फ्लो है और एक बहुत स्लो है। जिस नोस्ट्रल से हम एक्सेल कर रहे हैं फ्री फ्लो, वो हमारा स्वर अभी चल रहा है। वो आपका राइट भी हो सकता है और लेफ्ट भी हो सकता है। ये कुछ बार की प्रैक्टिस से ही आप समझ जाएंगे कि हम किससे इनहेल कर रहे हैं और किससे एक्सेल कर रहे हैं। आज मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि राइट नोस्ट्रल हमारा जब चल रहा है उससे हमें कौन सा काम करना चाहिए जिससे हमें सक्सेस मिले। यहां से करेंगे हम इनहेल तो हमें इस नोस्ट्रल में कौन से काम करने चाहिए जिससे हमारी हेल्थ और वेल्थ ठीक रहे। ये बेसिक जरूरत है जिससे हम अपनी बॉडी को ठीक रख सकते हैं। और इसी के लिए अगर आपका राइट स्वर चल रहा है, राइट यानी सूर्य स्वर, सूर्य यानी पिंगला, पिंगला नाड़ी आपने सबने सुना होगा इसके बारे में। सूर्य स्वर, पिंगला नाड़ी, हीट भी कह सकते हैं और यान भी कह सकते हैं। यांग स्वर राइट स्वर को कहते हैं। लेफ्ट यानी ईड़ा, मेल या कूलनेस। अगर आपके शरीर में गर्मी ज्यादा है तो आपको लेफ्ट वाला नोस्ट्रल ज्यादा यूज करना है। अगर आपको सर्दी, जुकाम, कफ, अस्थमा की शिकायत है तो आपको राइट स्वर से ज्यादा इनहेल करना चाहिए। ये एक अमेजिंग साइंस है क्योंकि जब हम पैदा हुए तब से लेकर आखिर तक, लास्ट मोमेंट तक ये काम करती है। इस दुनिया में हर रिश्ता, चाहे वो माँ बाप का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, बच्चों का हो, कब हमारा साथ छोड़ देगा हमें नहीं मालूम, लेकिन ये वाला रिश्ता हमेशा आखिरी समय तक हमारे साथ रहता है। इसे अगर हम अपना फ्रेंड बना लें तो हम बहुत आसानी से अपनी जिंदगी स्मूथली चला सकते, बिना दवा के चला सकते। और ये एक
ऐसी टेक्निक है जिसे आप कभी भी कहीं भी किसी पर भी कर सकते हैं, और आप देखकर हैरान होंगे कि बहुत आसानी से हमें इसके रिजल्ट मिलते हैं। जिस तरह हम घर से बाहर जाएं तो व्हीकल में एयर प्रेशर अगर बराबर होगा टायर में तो हमारी गाड़ी स्मूथली चलेगी। अगर एयर प्रेशर बराबर नहीं है तो हम अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकते। इसी तरह अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन यानी कॉस्मिक एनर्जी या कहें प्राण ऊर्जा बराबर होगी तो हम अपनी हेल्दी लाइफ लास्ट मोमेंट तक सही चला पाएंगे। ये हमें फिजिकली, फाइनेंशियली हर तरह से सिक्योर करती है। अगर हमारी जो सांसें हैं हमें बताती हैं कि हमें कौन सा काम किस समय करना चाहिए। अगर आप इस बेसिक टेक्निक को जान जाते हैं तो आप हेल्दी रह सकते हैं, क्योंकि हमारी जो 72,000 नाड़ियां हैं वो हमारी नेवल से ही जुड़ी हुई है। 36,000 राइट, 36,000 लेफ्ट से। हमारी बॉडी में 7 चक्रास हैं। हर चक्र इस तरह से कवर होता है ऊपर, जहां पर ये जुड़ता है चक्र, वही ये नाड़ियां नीचे से निकलती हैं, ऊपर आकर जुड़ती हैं। जहां जुड़ता है वही हमारा एक चक्र होता है। आपने सबने देखा होगा, बेसिक चक्र मूलाधार चक्र बोलते हैं, फिर स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। यहां से हम कॉस्मिक एनर्जी लेते हैं, और मूलाधार चक्र जो हमारा रूट चक्र है उससे हम जमीन से एनर्जी लेते हैं। और इन सबका बैलेंस हम इन नाड़ियों से कर सकते हैं। अगर आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करना चाहते हैं तो आपको राइट नोस्ट्रल जब आपका चालू हो उस समय करना चाहिए। हम सब लोग अपना बॉडी का वेट मेंटेन रखना चाहते हैं, लेकिन बहुत एक्सरसाइज के बाद भी जब हमारा वेट कम नहीं होता तो हमको समझना चाहिए कि हम एक्सरसाइज सही नोस्ट्रल पे नहीं कर रहे। अगर राइट नोस्ट्रल हमारा चालू है उस समय अगर हम एक्सरसाइज करें तो हमारा वेट आसानी से कम हो सकता है। हम खाना खाएं, कोई भी सॉलिड फूड जब हम ले रहे हैं तो हमारा राइट नोस्ट्रल अगर चालू है तो उस फूड की एनर्जी हमें बराबर मिलेगी। और अगर कोई ऐसा फूड जो हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है, या कहें कोई गलत चीज हमने खा ली है, तब भी अगर राइट नोस्ट्रल हमारा चालू है तो वो हमारी बॉडी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। क्योंकि राइट नोस्ट्रल मतलब सूर्य नाड़ी, सूर्य नाड़ी मतलब हीट। अगर ये हमारा चालू है खाना खाने के समय तो हमारे स्टमक में भी हीट होती है, उसे कहते हैं जठरा अग्नि। अगर हमारा स्टमक बराबर काम कर रहा है इसका मतलब जठरा अग्नि बराबर है। तो राइट नोस्ट्रल में अगर हम खाना खाते हैं तो हमें फूड की एनर्जी बराबर मिल सकती है। कई बार जल्दी बहुत सारा काम करते हैं और थक जाते हैं, उसका कारण भी यही है कि थकान होने का कारण हमने सही नोस्ट्रल जब चालू था उस समय काम नहीं किया। राइट में अगर हम काम करेंगे मेहनत वाला तो हमें थकान नहीं होगी। आप फिजिकल वर्क करें, स्विमिंग करें, एक्सरसाइज करें, आपको राइट नोस्ट्रल में ही करनी चाहिए। अगर आप स्टडी कर रहे हैं या घर से बाहर जा रहे हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए आपका लेफ्ट नोस्ट्रल चालू हो। लेफ्ट नोस्ट्रल हमारा चालू है
उस समय अगर हम घर से बाहर निकलते हैं किसी भी काम के लिए, बहुत आसानी से वो काम हमारा होगा, पूरा होगा, और हम वापस घर बिल्कुल सही समय पर आ पाएंगे। एक और चीज है, जब राइट नोस्ट्रल से लेफ्ट की तरफ हम आते हैं, उस बीच हमारे दोनों नोस्ट्रल एक साथ चलते हैं, उसे कहते हैं सुषुम्ना स्वर। वो बीच का टाइम जब दोनों स्वर चल रहे होते हैं, हमें कोई भी एक्टिविटी फिजिकली हो, मेंटली हो, नहीं करनी चाहिए। उस सुषुम्ना स्वर में हमें सिर्फ ध्यान, स्वाध्याय या धर्म का कोई भी काम हो वो करना चाहिए। ध्यान इस समय करने से हमें बहुत आसानी से हम आगे बढ़ पाते हैं। सुषुम्ना में किया हुआ कोई भी काम हमें डिस्टर्ब करेगा या तकलीफ देगा। तो सुषुम्ना में हमें ना तो घर से बाहर जाना चाहिए, कोई भी काम हमें सुषुम्ना में नहीं करना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा, कोई भी नई चीज हम लेकर आते हैं बहुत अच्छी, या समझिए ज्वेलरी हमने खरीदी और वो खो गई, टूट गई, तो आप समझ लीजिए आपने गलत स्वर में उसे पहना था। कोई भी हम इलेक्ट्रॉनिक लें, कपड़ा लें, ज्वेलरी लें, फर्नीचर लें, कुछ भी लें, अगर हमने अपने नोस्ट्रल को चेक किए बिना लिया और उस गलत स्वर में उसे यूज किया, तो वो हम बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। अगर आप कोई भी नई चीज ले रहे हैं तो आपको लेफ्ट नोस्ट्रल चालू हो उस समय उसे यूज करना चाहिए। वो आपको लंबे समय तक आपके साथ देगी। आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे का अगर लेफ्ट नोस्ट्रल चालू है तो बच्चे को वो चीज आसानी से समझ में आएगी और वो बहुत आगे बढ़ पाएगा। लेफ्ट स्वर हमें कोई भी काम करने की स्थिरता देता है। अगर हम उस काम को लंबे समय तक करना चाहते हैं तो हमें लेफ्ट नोस्ट्रल में ही करना चाहिए। आपको अगर लिक्विड पीना है, पानी पीना है, दूध पीना है, शेक पीना है, कुछ भी, तो आपको लेफ्ट नोस्ट्रल में पीना चाहिए। उससे आपको सर्दी जुकाम भी नहीं होगा और आप हेल्दी भी ठीक रहेंगे, आपकी हेल्थ ठीक रहेगी और आपको आगे फिजिकल बॉडी में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर हम राइट नोस्ट्रल चालू है उस समय पानी पीते हैं तो बहुत जल्दी हमको सर्दी जुकाम हो जाते हैं। यहाँ पर जो लोग हैं वो चेक कर सकते हैं, गलत स्वर में करने से ही हम बीमार होते हैं। जब हम रात को सोते हैं, अगर सूर्य स्वर में सोएंगे तो सुबह उठने पर हम अपने आप को बड़ा फ्रेश फील करेंगे। अगर आप सुबह उठने के बाद अपने आप को थका हुआ महसूस करते हैं और ऐसा लगता है और सो जाए, अभी हम एनर्जी हमें नहीं समझ में आ रही है, तो आप देखिएगा आप रात को चंद्र स्वर में सोए थे। रात के समय चंद्र स्वर में नहीं सोना चाहिए, हमें सोना सूर्य स्वर में चाहिए, फिर बाद में अपने आप जब चंद्र स्वर आ जाए वो ठीक रहता है। अगर हम फाइनेंशियली अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं तो आप देखिएगा घर में लाया हुआ पैसा अगर आप राइट हैंड से रखेंगे तो वो जल्दी खर्च हो जाएगा, बहुत जल्दी हमारे पास से चला जाएगा। अगर आप लेफ्ट स्वर चालू है और लेफ्ट हैंड से अपने पैसे को रखेंगे तो वो लंबे समय तक आपका साथ देगा। आप ऑफिस जाते हैं, घर से निकलते हुए ध्यान रखिए लेफ्ट स्वर चालू हो, ये फ्री फ्लो हो, और ये स्लो तो रहता ही है बहुत हल्का सा। अगर ये फ्री फ्लो है तो आपको घर से निकलना चाहिए, वही पैर यानी लेफ्ट पैर पहले बाहर निकालें,
लेफ्ट नोस्ट्रल चालू होना चाहिए, तो आपको ऑफिस में कोई मुश्किल नहीं होगी। आप बहुत आसानी से बिना थके शाम को घर वापस आएंगे। वहां पर ऑफिस में भी आपको परेशानी कोई नहीं होगी। घर से जाते हुए ध्यान रखिए, अगर आप बहुत लंबी दूरी के लिए जा रहे हैं, लंबा ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो लेफ्ट स्वर ही चलना चाहिए। पास में जाना है तो आप राइट स्वर में जा सकते हैं। राइट स्वर में काम किया हुआ हमें सक्सेस दिलाता है, लेकिन बहुत थोड़ी वाली कोई चीज आपको याद करनी है तो आपको लेफ्ट स्वर में करनी चाहिए। राइट स्वर में करने से हमें याद तो बहुत जल्दी होता है, लेकिन वो लंबे टाइम तक हमारे साथ नहीं रहता है, तो इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो आप खुद चेक कर सकते हैं, आपका राइट नोस्ट्रल बहुत ज्यादा चलता है, गुस्सा आपको जल्दी आता है, बहुत जल्दी आप इरिटेट हो जाते हैं, आप चेक करिए, आपका राइट स्वर ज्यादा चल रहा होगा। काम करने का मन नहीं करता, लगता है दिन भर या तो लेटे रहे या बैठे रहे, तो आप देखिएगा आपका लेफ्ट स्वर बहुत ज्यादा चल रहा है। एक और बहुत अच्छी टेक्निक है, अगर आपके घर में कोई ऐसा लोग आया हुआ है, कोई व्यक्ति जिसको आप बहुत जल्दी आपके घर से हटाना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं कि वो चला जाए, ऑफिस में कोई सामने बैठा हुआ है और आप चाहते हैं कि वो जल्दी चला जाए यहाँ से, बहुत आसान टेक्निक है। पूरा जितना आप श्वास ले सकते हैं लीजिए और ऐसे छोड़ दीजिए। 4-5 बार करिए, कुछ देर रुकिए, फिर वापस करिए। कुछ मिनट में ही वो आदमी आपके पास से चला जाए। बहुत इजी टेक्निक है। आप कहीं पब्लिक प्लेस में हैं, आपको बैठने की जगह नहीं मिल रही है, आप इस टेक्निक को काम में लेकर देखिए, ये बड़ी आसानी से हमारी मदद करती है। किसी को आप रोकना चाहते हैं और वो जल्दी में है, वो जाना चाहता है, लेकिन आप चाहते हैं कि वो आपके पास रुके, इनहेल बिल्कुल अच्छा जितना कर सकते हैं उतना करिए और साइड में। अगर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि आप किस तरह से ले रहे हैं। आप करके देखें, बड़ी आसानी से वो, और जितना देर आप चाहते हैं वो आपके पास रुकेगा। और इतना प्रैक्टिकल मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, कहीं भी पब्लिक प्लेस में जाइए, आपको बैठने की जगह नहीं मिल रही है, आप करके देखें, जो आपके जहाँ कहीं भी जहां आप बैठना चाहते हैं वह खड़े हो जाइए और जो सामने बैठा है उसके सामने इस तरह से करिए, कुछ मिनट में ही वो उठकर चला जाएगा, आपको जगह मिल जाएगी। तो करके करिए, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ये टेक्निक सबके काम आती है। एक और बहुत इजी टेक्निक है, कहीं भी अचानक आपको फिजिकली प्रॉब्लम हो गई, कहीं पर दर्द हो गया या कुछ भी हो गया, सर दुख रहा है, कुछ हो गया, चेक करिए, जो नोस्ट्रल आपका चल रहा है तुरंत उसको टाइट बंद कर दीजिए। पहले देखिए कौन सा चल रहा है, जो चालू है उसको बंद कर दीजिए। कुछ मिनट में ही आप देखेंगे आपका 25% पेन निकल गया है, बहुत हैवी ब्लीडिंग हो रहा है, चोट लग गई है, आप एकदम जो नोस चल रहा है उसको बंद कर दीजिए। नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पर कॉटन डाल दीजिए, इसको बंद कर दीजिए कॉटन डालकर। बंद करते ही आप देखेंगे ब्लड का फ्लो कम हो जाता, वो रुकने लग जाता। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा हमारा नोस्ट्रल चल रहा है, तो इस तरह पेपर की बहुत पतली सी स्ट्रिप लीजिए, यहाँ रखिए, एक हिलती है और एक बहुत स्लो रहती है, तो इससे भी आप चेक कर सकते हैं।
अब मैं आपको बताती हूँ हम चेंज कैसे करें। अगर ये चल रहा है और हमको यहाँ इस पर लाना है, राइट को बंद करना है, लेफ्ट में लाना है, लेफ्ट चालू है तो हमको राइट में लाना है। तो आप पहले ऐसा देखिए, ये वाला मेरा चालू है। अब इसको बंद करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, थंब को रिंग फिंगर की रूट में रखेंगे, ऐसा बंद करेंगे, यहां पर इसको आर्म पिट में रखकर ऐसा बंद करिए, छोड़ दीजिए श्वास को और देखिए मुझे तो प्रैक्टिस है, मेरा तो आ गया है, लेकिन अगर आप और करेंगे तो आपका भी चेंज हो जाएगा। देखिए इस तरह से यहाँ रखा, हो सकता है आपको 4 to 5 टाइम्स करना पड़े। आप कुशन रख सकते हैं, बॉल रख सकते हैं, यहाँ पर एकदम टाइट रखना चाहिए और टाइट रखकर जैसे ही हम ऐसा लॉक करेंगे इसको, एक्सेल कर कर आपका तुरंत स्वर चेंज हो जाएगा। बहुत सारी टेक्निक है, बहुत आगे तक की, अभी हम इतना करते हैं, फिर देखिए आपको समझ आया तो हम आगे करते हैं। So my question is on that one is मैं जी दोस्त सबके behalf पे पूछूंगी अगर actually. So my जी question is you said make a fist और यहाँ पे रखो जी अगर जैसे ये मेरा right है ये मेरा left है and then if जी I make a fist and put it on my left hand side and tilt on my left side then my right will be activated which is जी, sun which बिल्कुल is बिल्कुल earth. बिल्कुल So in case you want to activate your left one, you make a fist, put it on your right hand side, and then you tilt it on your right, so your left will be activated. So your moon will be activated. So I'm gonna. Is it okay to explain a little bit, Neelaji, what you said? कुछ थोड़ा बता दूं मैं अपनी जो आपने बताया अभी. बिल्कुल आराम So से बताओ। so she said breath work is ancient thing and it is a science. So this is we are just introducing you a for that. So you can Google it and check it out more about it, or you can follow her. So breath work, she said right is sun and left is moon. So right is hot and left is cold. So what she said, like you have to do certain techniques, things. If you want to go longer, though, make sure your left nostrils is activate. So if you want to do fast things, like oh, you want to go for gymming or you want to lose your weight, so you make sure you activate your right nostril and then you do the thing. So it is more beneficial. So how it's more beneficial? You are going to gym, you are trying to lose the weight and you're doing activated, but your right nostril is activated and then it means your heart, your sun is activated. So it's burning fast. So that is the meaning of that. And she mentioned whenever you are about to study, activate your left one so you can memorize more for long time. If you memorize for short time, right activate, so you know you boom boom memorize it and it woof go. But if you want to memory something for long time, for your kids, you study, tell them to study in the left side, left, activate the left one. And she mentioned so many techniques how to activate it. She mentioned like you can see like, so mine is like it means I think left is activated because I am observing, I am open heart, I want to take it a long way. So for me also this is new thing. When I was somebody sent and I was listening to her, I said, oh my god, this is something so everybody should know about that. How to sleep. If you're sleeping, she said, if you're sleeping at your left side, so your right will be activated.
So if your right will be activated, it means your digestion, your sun is activated. So your digestion power is more powerful. It will clean out. So basically, sickness is like you have to clean your body. If the food comes in nicely and get out properly, then you are less sick people. So sickness is basically like whenever you have a food in your body and it create a gases and it goes into your body and mind and blah blah blah, and then it makes you sick. So what she mentioned, sleep it on your left side so your right is activated, and you have to do it in the beginning. It's not like you've been crazy about like, oh, I have to sleep it on left all the time. No, whenever time comes, your body adjusts you by yourself. It will take you the way your body need to be. So breath work is the sensor. So I'm going back to her actually. She mentioned how to do that. She mentioned you can put a cotton in your nostril to activate whatever you want to do that. So this is not your learning in one day. You have to practice. You have to practice, practice, practice. We can take a questions. You can raise your hand. अनीला जी, you want to say something else? कुछ और बोलना है आपको? जी, मैं एक और बताती हूँ, अगर आप कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम के लिए मेडिसिन ले रहे हैं तो उसे सूर्य स्वर में लेना चाहिए। सूर्य स्वर में लेने से वो दवा आपको जल्दी आराम देगी और जल्दी खत्म, मतलब ठीक हो जाएंगे आप। तो हमेशा मेडिसिन, कोई भी आप मेडिकल हेल्प ले रहे हैं, टेस्टिंग के लिए जा रहे हैं, डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, हमेशा सूर्य स्वर में जाइए। So make sure go in the right nostril so they get जी। out from your life quickly. Your medicine, you don't want to keep medicine. You want to put a perfume. You want to put beautiful things in your closet, in front of the mirror. No medicine at home, so eat them with the right nostril so they get out from your life as much as possible. एक बच्चों got के really so excited. एग्जाम के लिए बताना चाहती हूँ, अगर हम एग्जाम देना है, कोई बच्चे हो कोई भी हो, अगर आप दे रहे हैं तो बिल्कुल कोशिश करिए लेफ्ट नोस्ट्रल आपका चालू हो तब देने का। अगर आप 90 अबव लेके आते हैं तो 98, 99 आने में आपके देरी नहीं लगेगी, अगर आपका लेफ्ट नोस्ट्रल चालू है। देख, जब आप स्टडी करें, नॉर्थ या ईस्ट की तरफ आपका फेस होना चाहिए और लेफ्ट नोस्ट्रल चालू हो तब आपको पढ़ाई करनी चाहिए। और हम बैठे तो आप बंद कर भी ऐसा इस तरह करके भी बैठ सकते हैं। शुरू में अपने आप थोड़ी देर में लेफ्ट चालू हो जाता है। तो ध्यान रखिए, एग्जाम देने जाए तब भी ध्यान रखिए और स्टडी करें तब भी ध्यान रखिए। कम मेहनत में बहुत ज्यादा फायदा आपको मिलने लगेगा। Yeah, that's a beautiful thing she mentioned about, like, for the study thing. If you're going for exams, you can activate your left nostril and you can close the right one, and if you sit for a while, then your left will be activated by itself. So as I mentioned, it's not overnight you can do that. You have to practice. You have to recognize your breath, and then you can do that. And this is a recorded session. We are live on YouTube. You can check it out later also. If you want to learn more, because I know she did things quickly, because we want to tell few things, and then it's new thing for you, so you can do that. If you have any question, can we take a question, Sanila ji? जी जी, If you ले have any सकते हैं। question, we can help you. Go ahead and raise your hand so Jigna can unmute you, and then you guys can ask the question if you have any question about this session or breath work or any other question. So I think people are getting ready for that. I can ask you one question. So my husband has a sugar, and he's pretty always say, वो हमेशा like यही कहते हैं कि ओ मुझे कुछ नहीं हुआ, I'm good, and he's not good on
doing the thing. So any remedy for sugar you want to mention? जी We can use it. जी देखिए, शुगर की प्रॉब्लम हमारी बॉडी में इमोशंस के थ्रू आती है। उसमें है, ऐसे लोगों को लगता है कि काम जो भी कर रहे हैं वो उसमें परफेक्शन होना चाहिए। जब हम दूसरों से इसका सोचते हैं कि उस सामने वाला परफेक्ट नहीं है काम करने में, तो हमारी बॉडी में शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है। डायबिटीज का सबसे बड़ा कारण यही है। और इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं, ये यहाँ पर एक लाइफ लाइन जिसको बोलते हैं, इस पर ये 4 फिंगर्स रखकर आप इस तरह से जब भी आप कुछ खाएं, नाश्ता करें, लंच लें, डिनर लें, इसको इस तरह से 10 टाइम्स करिए, प्रेशर दीजिए, लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में ऐसे मसाज करिए। खाना खाने के बाद आपको ये मुद्रा करनी चाहिए और आप कुछ दिनों में ही देखेंगे कि आपका शुगर नॉर्मल रहने लगी है। कितने मिनट तक मुद्रा करनी चाहिए ये वाली? जी, How many ये minutes? कम से कम 10 मिनट तो करिए। Okay. और जब मुद्रा करें तो फिर वही है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। श्वास लेना, रोकना और फिर धीरे धीरे छोड़ना। Okay. ये सबसे जरूरी है। यहाँ पर हमारा पेनक्रियास इस जगह होता है सुजोग के पॉइंट्स में, तो ये एक्टिवेट हो जाता है यहाँ से। ये मसाज करिए। और बहुत लोग हैं हमारे ग्रुप में जिनके शुगर लेवल बिल्कुल नॉर्मल रहने लगा है। तो ये हर एक नॉर्मल बंदे भी कर सकते हैं? जी, नॉर्मल को तो ये कर सकते हैं, नॉर्मल लोग। जी। Okay. So after food, like make this जी position and then sit and breathe for, if you can do it for 10 minutes, it will help to digest, or it's good for sugar, right? जी। और नॉर्मल लोग अगर कोई भी नाश्ता करे, खाना खाए, उसके बाद अगर हम इस तरह से करते हैं ऐसा गरम, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब पेट में भारीपन, गैस, एसिडिटी कुछ नहीं होगा अगर हम इस तरह से करके गरम कर लेते हैं हाथों को। So if we rub our hands like that, hold जी it and rub it like that, so good for digestion after food. ये तो खैर मैंने ट्राई किया है. I tried this one actually. It's जी really work because I'm a Punjabi girl, so I eat a lot of spicy food and oil, parathe and everything. So now at least, and it always like make me burps after some time, it's not always, but yeah, sometime, because sometimes you get just crazy about the food you have up front of you, like, oh, ye bhi khana, ye bhi khana. So I do this massage and I see actually it settle down आप quickly. ना 2 चीज का ध्यान रखिए, राइट स्वर में खाना खाना और ये हाथ मसलना, तो आपका कभी वेट भी नहीं बढ़ेगा और डाइजेशन भी ठीक रहेगा। Wow. नीलम का वेट तो कभी बढ़ने नहीं वाला है। I just want to bring some humor. Dr. Kothari, this is a very amazing session. I am learning a lot. I'm getting emotional now. Okay, I have a question. So when you said take the medicine. Jigna Ben, first, love you. Yes. Okay. So don't get emotional. Awesome. Okay. Go ahead. I have a question. So you said that take the medicine on the Surya Swar. So whenever the time for medicine, so you close your left and activate your Surya. How long we should do that so that Surya Swar is really active? नहीं, देखिए, अभी आपको प्रैक्टिस चाहिए, तब होगा। हाँ, जब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको हैरानी होगी कि अगर हम अपने दांतों को लेफ्ट साइड से दबा ले तो अपने आप राइट चालू हो जाता है बाद में प्रैक्टिस से। अच्छा। लेकिन अभी आपको ऐसा ही करना पड़ेगा। यहाँ से बंद करिए, मुंह में दबा रखिए, पानी ले लीजिए। अच्छा, ओके जी ओके। सो लेफ्ट दबाना है, मुंह में दवा जी रखनी है और पानी से दवा लेनी है। और जी सो बिल्कुल। राइट, हाँ, दैट इज
बेस्ट वे टू ओके। जी एंड एग्जाम देने के समय में लेफ्ट नॉस्ट्रिल करना है तो वो भी ऐसे ही करके फिर यू स्टार्ट डूइंग योर जी असाइनमेंट और जी प्रोजेक्ट और जी। व्हाटएवर। आपको ठीक है। घर से भी जब जाएं तो पहले लेफ्ट पैर बाहर निकालें और लेफ्ट हाँ स्वर चालू होना चाहिए उस टाइम। आप अच्छा, एग्जाम देखकर देने के लिए। हाँ जी आपको हैरानी होगी, इतना अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा आपको इसका कि वो करने के बाद समझ में आता है। अच्छा। और जैसे जैसे आपने बताया कि कोई अच्छा काम करना है तो उस वक्त लेफ्ट नॉस्ट्रिल से करना है ना। जी जी हाँ तो अगर कहीं जा रहे हैं अच्छा काम करने के लिए तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल करके लेफ्ट पाँव अंदर रख के और बाहर रख के चले तो अच्छा। जी ठीक जी है, जी। थैंक यू, वेरी अगर गुड। हमारी दो दो जनों के बीच में कोई बोलचाल हो जाती है, जैसे लड़ाई वाली स्थिति, कुछ हाँ बोलना है कुछ करना है, अगर हमारा राइट चालू है हाँ तो सामने वाला गलत है या सही उससे मतलब नहीं, उसको नीचे डाउन होना ही पड़ेगा। अच्छा ऐसा भी होता है अच्छा अच्छा, जी। गुड टू नो। Yeah, I think it's kind of science, need to learn how to use it. अच्छा, Anybody ये want to सब raise? आपके पास एक और क्वेश्चन है, ये सब जैसे कौन से में चलता है जी तो ये सब के लिए आपके पास कुछ जैसे नोट्स वगैरह है कि भाई आप शेयर कर सकते हैं? जी मैं कर दूंगी नीलम जी को, वैसे तो मेरी प्रैक्टिस में ही है इसलिए हाँ ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर नहीं आप आपके चाहते हैं तो नहीं बोलिए, एक मैं छोटी कर दूँ। छोटी चीजें जैसे हम लोगों ने जी तो पहली बार सुनी है तो हमको जी जी याद रखने में थोड़ी दिक्कत। मैंने जैसे नोट्स तो मैं ले रही हूँ, मैं लिख रही हूँ जी जो जी जी मुझे मेरे लिए अप्रोप्रिएट है, पर बहुत सारी चीजें काफी लोगों को जी अप्रोप्रिएट है ना, सबके लिए जी अलग जी अलग होता है सिचुएशन। तो जी अगर कुछ लिखा हुआ मिले तो हम लोग उसके ऊपर मतलब ज्यादा ध्यान रख सकते हैं भी, चलो ये जी नोट वी कैन गो बैक टू द नोट एंड रिव्यू इट, कि चलो ये सिचुएशन है, अब क्या करना चाहिए, राइट या जी लेफ्ट जी या है ना। Yeah, जी and बिल्कुल we have a recording for this session also. You can log in anytime to. I think you should listen to this amazing seminar several times and make your Yes, own notes actually. yes, But again, like yeah, whatever is available, we can put the notes on definitely. But I said like everybody is supposed to have a little bit work on that one. It's not like your bani banai mithai hai. हाँ I mean, I'm just trying to be like, that's what I say, like, you can write with your own hand, but definitely we can provide you everything. yes. Anybody else has any question Yes, about? Yeah, about there is one pain. Can question. you It says, please will you say something about knee pain? yes, me. Yes, thank you, Taravan. नहीं. What is I read anything? your note. Yeah. जी Okay, घुटने में कोई दर्द के लिए अगर जी कुछ बताएं आप. जी बहुत अच्छा सा है। कहा राइट में है या लेफ्ट नी में है? ताराबेन बोलो. कहाँ गया? लेफ्ट में, लेफ्ट में. लेफ्ट जी। और एक और बताइए कि कब होता है आपको, सीढ़ियां चढ़ते हुए या चेयर पर बैठते हो, किस टाइम होता है? Actually, you know, when I'm doing something, when I have to get up or something like that. जी Okay. अगर कैमरा देखिए ऑन कर सकते हैं तो कर ले प्लीज. नहीं नहीं. That's fine. Okay. देखिए लेफ्ट नी पेन के लिए हमको लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर, हाँ. ये मैं आपको सुजोग का ट्रीटमेंट बता रही हूँ। सुजोग में जहां पर हमको तकलीफ है हम उस चीज को टच नहीं करते, हम अपने फिंगर से ट्रीटमेंट कर सकते हैं और इतना परफेक्ट आपका ट्रीटमेंट होगा हाँ. कि मतलब बड़ा, ये सुजोग एक कोरियन थेरेपी है और एक अमेजिंग साइंस है। मतलब जो टेक्निक उन्होंने बताई है जिस डॉक्टर ने हमको, पार्क जीवू ने, बहुत बहुत अच्छी है। ओके. मतलब और मैं इस मामले में लकी हूँ कि मुझे उनसे ही सीखने को मिला। दैट्स डॉक्टर गुड. पार्क जीवू थे। हाँ जी। तो आप अपनी लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर को का ये वाला जॉइंट, हाँ. इस जॉइंट को रेड मार्कर पेन से अभी So I just want to mention next session for next month will be on the हाँ Sajog, that is so called the color therapy.
So we will invite her one more time next month for Jivanta, and then she will talk about like those color therapy she's saying, Sajog, and so we can learn more about it, and that is also very amazing. जी, ये आप इस ज्वाइंट पर रेड कलर का मार्कर पेन जो आपके पास इस तरह आते हैं, हाँ। इससे कर दीजिए, रेड लाइन सर्कल बना दीजिए। हाँ। यही सर्कल आपको राइट हैंड की रिंग फिंगर में बनाना होगा इस ज्वाइंट पर। ये आपने करा, उसके बाद आपको इस फिंगर पर इस तरह से मसाज करनी है। कोई भी आप पेन वाला जो ऑयल है या ऑइंटमेंट है कुछ भी लगाइए और इसकी मसाज करिए। ओके। अगर आप अभी भी करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, आपका 10-20% पेन तो अभी कम हो जाएगा इसको करने से। While you're talking and doing, Taraben, you can do it. हाँ, मैं कर रही हूँ। जी, और ये दोनों फिंगर का देखिए, कोई भी अगर यहाँ पर किसी को भी नी पेन है तो मैं कुछ फिंगर्स की एक्सरसाइज बता रही हूँ, उससे आप अपना मतलब कमर से लेकर पैर तक का कोई भी पेन आप इससे ठीक कर सकते हैं। ठीक है। हाँ। जी, उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐसा देखिए, एक हाथ पर एक को फोल्ड करा और इसको ऐसा खींचेंगे, इस तरह से थोड़ा टाइट करेंगे और फिर ऐसा 5 टाइम्स करा, फिर 5 टाइम्स हमने इस तरह से किया, फिर इस हाथ में करेंगे ऐसा ही। ओके, दोनों हाथ में। ओके, ठीक है। दोनों हाथ में ये करके फिर हम इसको एकदम रिंग हमको निकालनी होगी, फिर हम ऐसा टाइट करके ऐसा बंद करेंगे इसको, देखिए, और ये दोनों थंब आपस में लेकर यहाँ लगाएंगे। और एक बीजाक्षर थेरेपी होती है, उसमें हम बोलते हैं लम, तो आपको ऐसा बोलना है, लम लम लम। अगर आपके लिए पॉसिबल है तो 45 मिनट्स ऐसा करके बैठिए। ओके। आपका नी पेन कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। Wow, thank you very much. I'm so happy to hear this. जी, Thank you. ओके, रश्मि, आपको कुछ क्वेश्चन है, आप बताइए। हाँ जी, कैन यू प्लीज रिपीट अबाउट द हाई ब्लड प्रेशर, कौन सा नॉस्ट्रिल है, और जो सुबह उठते हैं और काम करने का मन नहीं करता उसमें कौन सा करना है? थैंक यू। जी, हाई ब्लड प्रेशर में हमारा दिन के समय ज्यादा राइट नोस्ट्रल चलता है तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। ऐसे लोग ज्यादातर शॉर्ट टेम्परामेंट, गुस्सा ज्यादा, डाइजेशन भी वीक, ये सब चीजें साथ होती है। अगर आपको ये सब प्रॉब्लम है तो आप चेक करिए दिन में आपका कौन सा स्वर ज्यादा चल रहा है, तो आपको इसको बंद करके चेक बार बार इसको चलाना होगा, लेफ्ट को चलाना है। जी। और अगर आप देखिएगा, अगर आपका बीपी 160, 200 कितना 180 है, इसको बंद करिए, यहां से श्वास लीजिए, रोकिए और छोड़िए। 5 से 10 मिनट में आपका 10 to 20 जी ब्लड प्रेशर तो मेंटेन्ड है बिकॉज आई एम टेकिंग अ मेडिकेशन, सो आई वाज जस्ट वंडरिंग कि मेडिकेशन किस टाइम लेनी चाहिए, लेफ्ट में राइट में? राइट में लेनी चाहिए, लेकिन देखिए, जो हम बीपी की जो दवा लेते हैं वो हमारी किडनी पर इफेक्ट डालती है, क्योंकि उससे यूरिन ज्यादा पास होता है, और आगे चल के लंबे टाइम के बाद हमारी किडनी कमजोर हो जाती है। अगर आप नॉर्मली अपनी बॉडी को ठीक कर ले तो आपकी जो मेडिसिन आप जो ले रहे हैं वो कम हो जाएगी उसकी पावर, और आप अपने आप ठीक हो सकते हैं। और आप करके देखिएगा किसी दिन, आप चेक करिए ब्लड प्रेशर और फिर इसको बंद करिए, इसी से लीजिए, इसी से छोड़िए। नहीं, लेफ्ट से क्या राइट? आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट लेफ्ट और राइट। जब Okay, let me explain to you. Okay, right is sun. Yes. Okay, left is moon. Yes. So right is for hot and left is for cold. Right. So just imagine when the blood pressure is high, तो कौन सा चल रहा होगा? Definitely the right is active, because it's high. So when the blood pressure is low, then you find out your left is
working more than right. So that's what she's trying to say. Like whenever you That's have a right. high blood pressure, Mm-hmm. so you try to breathe mostly from the left side. So that way your body is, so our body have a sensor. God made our body with all the sensors. Perfect thing, perfect. But with our habits, our food, and our like not doing anything or whatever it is, whatever things are not available. So all sensors, they not get activated. They got have some dust on that. Maybe they are not clear. So with the breath work, the what she's teaching you, with that you can activate those sensors. They will work. Okay. For And normally, let me finish. For normal, the right first, when how the God made is, for 1 hour one thing work, and then after that the second one start working, because the God made the temperature normal. So what they does, it working for right for maybe 1 hour, I don't know the time, for sun, and then it start moon start working, it makes a balance. But mm-hmm. what it happens with our habits, those scanners are not working. So right is working all day, blood pressure, we cannot live with those things. We have to get rid of those medicine. um, that's what I'm trying to say. That's why she's here. Thank you. Okay. And then the other thing is सुबह उठने का, जैसे lately I didn't feel like getting up और मुझे laziness होती है कि थकी हुई मैं, तो उसके लिए क्या करना है? Activate your right, your Activate sun, right. activate your energy, boost up, Activate your activate sun. your right, then you feel you have more energy. All right. Thank you. Yes. Thank you so Thank much. you. It's unbelievable information. Thank you so much. Unbelievable. Yes, I'm so unbelievable. amazed that I never thought about these things. And, thank you so much, Neelam ji and Anila ji and Jigna ji, for this. Thank you so much. Get God bless. rid of all your medicine. That is her motive. That Dr. Anila's motive. No No medicine in your life. Slowly, slowly do the thing. Slowly, slowly. Not gonna be work overnight. But again, maybe after 6 months, you are medicine free. Maybe after 1 year, no medicine in your life. How blissful life will be. So people like her teaching us. Thank you. Go ahead. Go ahead if you want to say something else, Anila ji. कुछ और बोलना है तो? नहीं, बस आप देखिए, दुनिया में सबसे ज्यादा जो बड़ा बिजनेस है वो है हथियारों का, है ना, सबसे ज्यादा ये। और सेकंड नंबर है मेडिसिन। हर लोगों के घरों में टेबल पर मेडिसिन रखी हुई है। और अपने इंसान के अलावा कोई भी लिविंग थिंग है, मतलब कोई भी एनिमल है, बर्ड्स हैं, यहाँ तक कि प्लांट्स हैं, कुछ भी, किसी को मेडिसिन की जरूरत नहीं है। सब अपने आप बढ़ जाते हैं। हमारे बाल निकल जाते हैं, वाइट हो जाते हैं, हम मेडिसिन लेते हैं। आपने कभी देखा किसी जानवर के बाल निकलते हुए, गिरते हुए? नहीं होता। पूरा हमेशा सही रहते हैं वो, क्योंकि उनके पास टेंशन नहीं है, प्रेशर नहीं है यहाँ पर। तो हम भी अगर जीना सीख जाए कि प्रॉब्लम सबकी जिंदगी में आती है, हर रोज आती है, लेकिन प्रॉब्लम का हमको इलाज करना है, ना कि अपने सर पर लेकर बैठना। अगर यहाँ नहीं लेंगे तो हम बीमार नहीं होंगे। एक बात मैं बताऊंगी कि नीला जी, क्या होता है कि प्रॉब्लम जब आती है ना, तो सर पे लेने के लिए, मतलब क्या होता है कि हम इतने अटैच्ड होते हैं ना हमारी प्रॉब्लम के साथ, कि हमको लगता है कि हमें इसका सॉल्यूशन लाना ही लाना है, और वो जिद में हम स्ट्रेस लेते हैं। और जी, मैं ऐसा बता रही हूँ, कोई भी देखिए, हमें हेल्थ इश्यू है, अगर हम उसका ट्रीटमेंट कराएं वो तो ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ लेकर बैठ जाएंगे कि मुझे ही क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, तो फिर ये बीमारी यहाँ आने से बहुत लंबी चलेगी। और फिजिकली प्रॉब्लम तो निकल जाती है, लेकिन सर पे जब हम ले लेते हैं तो वो इतनी लंबी और इतने, एक तरह से समझिए, अंदर तक चली गई, तो उसको ठीक करने में बहुत टाइम लगता है। बिल्कुल बस ये वाली बात है। मैं कई ऐसे लोगों को जानती हूँ, ब्लड कैंसर जैसी प्रॉब्लम में भी अगर उन्होंने स्वर का ध्यान रखा, खाना पीना, टॉयलेट के लिए जाना, यूरिनेशन के लिए जाना, स्वर का, और मेडिसिन के लिए, बहुत आसानी से नेगेटिव रिपोर्ट आ गई उनकी। तो इससे अच्छा क्या होगा? आप
स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करिए, आप खुद लगेगा आपको कितने अमेजिंग रिजल्ट है इसके। अच्छा, और रात को यूरिन जाना पड़ता है 2-3 बार, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? जी, उसके लिए हम कलर लगा सकते हैं, वो अच्छा रहता है। देखिए, पैर, हमारे पैर की जो लिटिल फिंगर है, हमें उसकी मसाज करनी चाहिए। ओके। यहाँ पर इस जगह पर 2 उंगलियां इधर 2 इधर, यहाँ रेड कलर का एक सर्कल बना लीजिए। सर्कल का साइज हमारे थंब के नेल के साइज का होना चाहिए। अच्छा, ओके। यहाँ रेड कलर करिए, यहाँ मार्कर पेन से रेड लाइन कर लीजिए। आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि मतलब बड़ी आसानी से आपकी प्रॉब्लम ठीक हो गई। हाउ अबाउट Um, हेयर लॉस, बाल बहुत झड़ते हैं, उसका भी है कोई? जी, हेयर लॉस के लिए एक तो यहाँ का प्रेशर कम करिए। प्रेशर कम करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, जब भी आप फ्री हो तो आप देखिएगा, नेचुरली हमारी बॉडी ये वाली आदत देती है, जब हमको कोई डिसीजन नहीं ले पाते हम, तो हम रिलैक्स होने के लिए ऐसा करते हैं। yes. ऐसा करने से हमारा स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। यहाँ यहाँ से लेकर अगर हम इस तरह से देखिए, मेरा वीडियो भी है हेयर लॉस के लिए, आप देख सकते हैं। अपनी फिंगर मैग्नेट को ऐसे गर्म करिए, कभी हम सेशन लेंगे, फिंगर मैग्नेट बन जाती है इससे। ये देखिए, वाइब्रेशन ऐसा ऐसा देखिए, वैक्यूम जैसा हो जाता है। और ऐसा करने के बाद अगर हम अपने बालों पर इस तरह से फेरें, आपको थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसा करिए, ये एक अलग टेक्निक है, प्राणिक हीलिंग बोलते हैं इसको। कभी नाम सुना? बहुत सारी मिक्स कर देते हैं तो पता नहीं चलता। फिर इसके बाद अगर हम ऐसा करें तो वाइब्रेशन हमको महसूस होगी। और यहाँ से इस तरह से अगर हम किनारा किनारा दबाएं इधर, फिर नीचे जहां बाल हमारे हैं कि एकदम पॉइंट्स पर लास्ट पॉइंट तक दबाते रहे, आप देखिएगा कुछ पॉइंट पीछे की साइड आपको बहुत पेनफुल होंगे। और वो पेनफुल तभी होते हैं जब हमारा हेयर लॉस हो रहा है। अगर परफेक्ट है तो फिर नहीं दर्द करते हैं। ये देखिए, ऐसे यहाँ पर ये वाला इधर पॉइंट होता है, यहाँ कान के चारों तरफ ऐसा दबाइए। और मैं ऐसा नहीं कह रही आज करेंगे तो 1 वीक बाद आपको रिजल्ट 1-2 दिन में ही मिल जाएंगे। अगर आप दिन में 2-3 बार करते हैं तो 1 दिन में मिल जाएंगे। आपका समझ में आ जाएगा कि बाल अब नहीं गिर रहे हैं। बस ऐसा करना। या मैंने ऐसे तो सुना था, लोग कहते थे कि वो आपका रिजल्ट 1-2 दिन में, 1-2 हफ्ते में नहीं मिलेगा, 2-4 महीनों में मिलेगा। पर यहाँ नहीं सुनने में नहीं, आ रहा है, now we are talking about like, oh no, it's not going to थैंक यू take सो 1 or मच। 2 weeks, you can feel it in 1 or 2 days, it's amazing. And I request you, अनिला जी, आप अपना वो वाला मंत्र भी दे दीजिए आज ही, कि वो लेट इट गो, जो आप कहते हैं कि वो रखे नहीं, खाली करें, वो भी बता दें प्लीज। आई रियली need people to know about it actually. देखिए, एक आपको रिलैक्स करने के लिए या इसको खाली करने के लिए एक टेक्निक बताती हूँ। ऐसा एक हाथ ऐसे हाथ करिए, लेफ्ट हैंड इसके नीचे राइट हैंड ऐसा। इसमें हम क्या करेंगे, थंब हमारे दोनों बाहर है, एक ये भी इधर ये भी इधर, ऐसा। टंग, अपनी टंग को ऊपर की तरफ लगाइए पैलेट पर। और ऐसा करके आप सब लोग आंख बंद करिए, जीभ को ऊपर लगाइए, हाथ ऐसा रखिए और गहरा श्वास यानी डीप ब्रीथ करिए, रोकिए और बहुत धीरे धीरे छोड़िए। ऐसा हम 10 टाइम्स करते हैं अभी, फिर मुझे बताइएगा, हम आगे बात करते हैं।
अभी सब लोगों ने प्रैक्टिस करी, फिर मुझे बताइए किसका दिमाग शांत था और किसके मन में विचार आ रहे थे, बताइए। विचार कम हो गए थे, आ तो रहे थे, बिल्कुल बंद नहीं हो गए थे, पर कम हो वैसे गए। देखिए, अगर हम जीभ को ऊपर लगाते हैं और ऐसा हाथ करते हैं तो लॉक लग जाता है, विचार नहीं आते हैं। आप एक बार वापस प्रैक्टिस करिएगा बाद में। कभी भी आपको अपने आप को रिलैक्स करना है, आप ऐसा करके बैठिए। आप अपने हाथों को ऐसे करके दिखाएं अनिला जी, थोड़ा सा ऐसे करके दिखाएं ताकि हमें दिखे। तो ये दोनों अंगूठे बाहर है एंड उंगलियां दूसरी ये साइड है, एंड देखिए, ये दूसरी साइड दोनों से बाहर है हाँ और जी, फिंगर्स लिटिल के ऊपर इंडेक्स आ गई, ऐसे उल्टा। या बस। so राइट it is like this. ये thumbs are out है, जी बिल्कुल। yeah, so it's लेफ्ट ऑन easy, you don't need to do anything, it's just like they are together like a, yeah, राइट ऑन द टॉप। yes, अब right ऐसे on the top, see जी little finger, index finger, this ring finger, the middle finger, and then this middle finger, ring finger. So yeah, every fingers is on the top, the thumbs are out like this. See, yeah, very easy. And touch your tongue to the palate, like tip of the tongue to the palate up there. So just close your eyes and breathe. Practice at home. Practice at home. तो वो मंत्रा मैं पूछ रही थी आपको, जो आप सबको बोलती हैं कि आपके दिल में जो है निकालो बाहर, कुछ रखो नहीं। सबको स्वीकार करने का। यस यस यस, ये हाँ बहुत जरूरी है, आप बताएं जरूर प्लीज। जी जी। देखिए, अगर हमको प्रॉब्लम, हम फैमिली में रहते हैं, है ना, सबका नेचर अलग होता है, लेकिन प्रॉब्लम हमको इसलिए आती है कि हम जैसा वो है उसको स्वीकार नहीं कर पाते। हम सब में वो क्वालिटी चाहते हैं जैसा हम चाहते हैं, ऐसा सबके लिए पॉसिबल नहीं है। तो हमें क्या है, पानी की तरह हो जाना चाहिए। जैसे पानी को जिस बर्तन में डालेंगे वो वही शेप ले लेता है, ऐसा सही है ना? आपने देखा। तो फिर हम इंसान को ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है कि हम सामने वाले में चाहते हैं कि नहीं हमारा जैसा ही हो। बिल्कुल, और इसी गलती से हम बीमार हो जाते हैं। सारी जिंदगी हम दूसरे को सुधारने में लगा देते हैं। वेरी हमको क्या करना है, अपने आप को सुधारना है, अपने आप को हेल्दी रखना है, वेरी नाइस। बस। जी। तो ये जो स्वीकार भाव आएगा अगर हमारे अंदर, तो हमें फिर ना दवा की जरूरत है, ना बीमारियां हमारे पास आएंगी। सब कुछ मुझे स्वीकार है, सब चीज। स्वीकार भाव लाए कैसे? ये लाए ऐसे कि हमारी दूसरे के प्रति एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, वो हटा देनी चाहिए। मुझे देखिए, आप अपने बॉडी को ही आप संभाल के नहीं रख पा रहे हैं। धीरे धीरे हमारी आईज वीक, दांत वीक, बाल झड़ने लगे, हम उस कितनी केयर करते हैं उसे ही नहीं कर पा रहे। तो फिर हम इसको कैसे करेंगे? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। कब हमारी आंख बंद हो जाएगी कुछ नहीं मालूम, नहीं पता। सच। और हम कोई भी चीज खरीदते हैं, महंगी सस्ती, उससे मतलब नहीं। हम सबको देखते हैं कि क्वालिटी कैसी है, और हम अपनी क्वालिटी को इतना डाउन कर देते हैं कि हम किसी को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। यू आर राइट। जी, अभी आपने जैसे नी पेन बताया, किसी अभी यहाँ पर थे। अब नी पेन का इमोशन से हम अगर कारण देखें, अगर आपको कोई चोट नहीं लगी है और बॉडी ने आपको अपने आप नी पेन दिया है, इसका मतलब है कि हम कुछ और करना चाहते थे, लेकिन परिस्थितियों से, फैमिली के बैकग्राउंड से, या फाइनेंशियली, फिजिकली, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, हम वो काम नहीं कर पाए। अपने आप को हमने उस काम को करने से रोका, बस हमारी बॉडी नी पेन देती है। ओह वाओ। So let it go. Yes, let it go. Let it go. Right? बिल्कुल। एक और क्वेश्चन है डॉक्टर कोठारी जी। कि आपकी यूट्यूब चैनल है या उसमें हम सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसमें ज्यादा वीडियोस और टिप्स मिलेंगी? बहुत सारी है, देखिए आप। इंस्टा पर भी है, फेसबुक भी है, फेसबुक पर भी है, So और when we यूट्यूब put पर a भी। flyer So on, what is there is your a link. Instagram and Facebook IDs?
जी, आपको इस ग्रुप में ही भेज देंगे आपको सारे Yeah. लिंक। जी Okay. I In I YouTube already link put also. actually I already put her YouTube channel on the flyer. Actually, there is a link there, Yeah. but definitely we'll put it on. It's already 11:46. So we have a few more minutes. Is anybody want to say anything? They can say that. But I want to say one thing, people, because as she said, let it go. People have they cannot breathe. What kind of problem is that? Like they suffocate and then they have to have the inhaler. What is so called, Jigna? That kya bimari hoti hai? अस्थमा। Asthma, yes. So Asthma. asthma, she mentioned like when you have asthma, it means you are holding something. Can you say about that? Because I want you to just little bit tip, because I know we are getting out of time. But very important, people, so many people like women have asthma and जी the lungs and then the chest जी is. So please, आप उसके बारे में बताएं. जी देखिए, लंग्स हमारा बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जो हर पल नई ऑक्सीजन लेता है, नई हवा लेता है। जब हम नएपन को स्वीकार नहीं कर पाते तो हमारे लंग्स धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं, उनकी कैपेसिटी कम हो जाती है। एक बात। दूसरा, लंग्स की प्रॉब्लम हमको इसलिए आती है, हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमको प्यार करें। अब जब हम किसी को प्यार नहीं दे पा रहे तो दूसरा क्यों करेगा, और क्यों करेगा, नहीं कर पाते। तो ये एक्सपेक्टेशन हमको छोड़ देनी चाहिए कि दूसरा हमें पसंद करे, ये बात छोड़ दें और नयापन स्वीकार करें। आपको लंग्स की प्रॉब्लम बड़ी आसानी से आपकी दूर हो जाएगी। देखिए, मेरे ग्रुप में कोई दवा नहीं है, कोई, सिर्फ हम अपनी बॉडी को इस तरह कलर से, मैग्नेट से, फिंगर से ठीक कर सकते हैं। कोई पैसे का खर्चा नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, और कहीं भी कभी भी किसी भी एज ग्रुप वाले के आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है, आप सब लोग देखिए, करिए और दूसरों को बताइए कि हम बिना दवा के जी सकते हैं और हेल्दी रह सकते हैं। आज हम देखिए, पिछले करीब 30 सालों से हमारे घर में फीवर की, मतलब बुखार के लिए भी कोई दवा नहीं आई है। सब कुछ हो सकता है बिना दवा के। आप भी करिए, क्योंकि घर में जब फैमिली में रहते हैं तो कोई ना कोई बीमारी तो चलती है, लेकिन हम उसको क्योर कर सकते हैं बिना दवा के। One more last question. I believe it. One more last question. I'm just asking general question because I know this gonna be watched again and again. So the last question is, some people they got sick because they think कि उसके माँ को भी शुगर थी तो उसको भी होगी, उसके बाप को ब्लड प्रेशर था उसको भी होगा। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? देखिए, हमारे How to handle that? जी, हमारे माइंड का आपने सबने सुना होगा, 3 होता है, चेतन मन, अवचेतन मन और अचेतन मन। सबकॉन्शियस माइंड में जब हम ये देखते हैं माँ को थी, पापा को थी, तो मुझे, जब उनको थी तो मुझे भी होगी, क्यों, ऐसा क्यों? या तो डॉक्टर्स कह रहे हैं या बुक्स में हमने पढ़ा, मैगजीन्स में, बुक्स में, कहीं भी हमने पढ़ा। तो हमारा दिमाग तैयार हो जाता है कि ये बीमारी मुझे क्रिएट करनी है, बार बार सोचकर। आप देखिएगा, जिन लोगों को आइसक्रीम से जुकाम हो जाता है वो क्या कहेंगे, अरे आज मैंने आइसक्रीम खा लिया, अब मुझे जुकाम होगा, क्योंकि वो ऐसा मेरे पिछली बार हुआ था तो इस बार भी होगा, और आप देखिए पक्का होगा। और जब वो अगर फ्रेंड सर्किल के साथ हैं, अपने ग्रुप में हंसते हुए खा रहे हैं, उनको ध्यान भी नहीं कि उन्होंने कब उठा के इतना बड़ा ब्रेक खाली कर दिया, उनको कुछ नहीं होता, क्योंकि तब दिमाग में काम नहीं था, दिमाग से उन्होंने सोचा ही नहीं कि मुझे आइसक्रीम से ये जुकाम खांसी क्रिएट करने हैं। तो अगर हम अपने दिमाग में ये सोच लें, ये मतलब ये विचार करना ही नहीं कि उनको थी तो मुझे होगी, ऐसा नहीं होता। क्या सारी चीजें आप कर रहे हैं जो पापा करते थे, मम्मी करते थे, वो आप कर रहे हैं? नहीं नहीं। अगर आप 2-3 भाई बहन भी हैं तब भी सबको नहीं होता है। तो ये तो आपके कंट्रोल में है कि आप क्या चाहते हैं।
हम मैनिफेस्ट करते हैं ना, जो हमारे बिल्कुल आगे बिल्कुल हम मैनिफेस्ट करते कि ये होगा तो वो होगा, तो व्हाई डोंट जी वी जी मैनिफेस्ट द हेल्दी हैबिट्स, व्हाई डोंट वी जी मैनिफेस्ट द बिल्कुल हेल्थ, बिल्कुल वी मैनिफेस्ट द बिल्कुल नेगेटिविटी कि भी वो बिल्कुल राइट, वी मैनिफेस्ट दैट। और मुझे एक क्वेश्चन था, माइग्रेन के लिए क्या करना चाहिए? माइग्रेन का बहुत आसानी से हो जाता है ट्रीटमेंट, बिल्कुल बिना दवा के। देखिए, एक तो माइग्रेन वाले क्या सोचते हैं कि मैं उस मतलब जो काम आप कर रहे हैं, तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको लगता है मैं उतना अच्छा नहीं कर पाऊंगी। जब वो अपने आप को छोटा महसूस करते हैं तो माइग्रेन की प्रॉब्लम बॉडी देती है। उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर ब्लैक कलर लगाएंगे मार्कर से, और मार्कर से लगाने के बाद इस तरह के रबर आते हैं, ये देखिए, इस रबर को यहाँ पर ऐसा रखिए, जितनी देर आपको अच्छा लगे। पहले ब्लैक कलर लगाइए, फिर ये कलर लगाइए, आपको जितना देर अच्छा लगे रखिए, फिर धीरे से निकालिए ऐसा, फिर इस हाथ में लगाइए। माइग्रेन अगर स्टार्ट हुआ है, क्योंकि जिनको माइग्रेन है उनको एक दिन पहले समझ में आ जाता है कि कल कुछ, अब कुछ होने वाला है मेरी बॉडी में, यस, तो आप ये लगाइए, बिल्कुल आपका माइग्रेन का वो अटैक होगा ही नहीं। ओके। इस थंब से हम हाई ब्लड प्रेशर भी बहुत आसानी से ठीक कर सकते हैं। ब्लैक कलर लगाइए दोनों थंब पर, यहाँ पर रबर लगाइए इस तरह से। बस रबर कैसे निकालना है ये हमको देखना है। हाई वालों को पहले एक इतना सा निकाल के छोड़िए, फिर दूसरा निकालिए, ऐसा नहीं, इस तरह से नहीं निकालना है। हाई ब्लड प्रेशर वालों को इसमें निकालिए, फिर इसमें लगाइए। बहुत ज्यादा हाई है, इसको एक दो बार रिपीट करिए, आपको खुद को लगेगा बिना मेडिसिन के आप ठीक होने लगे। और जिनको लो ब्लड प्रेशर है उसके लिए भी आप ऐसा कर सकते हैं। ये लगाया, लो में हमको ध्यान रखना, ऐसे निकाल, जितनी देर आप रख सकते हैं उतनी देर रखिए, फिर निकालना। ये देखिए, जैसे मैंने लगाया, आपका सर दुख रहा है कहीं से भी, इधर से, यहाँ अलग अलग कारण से दुखता है, यहाँ से अलग प्रॉब्लम, यहाँ से अलग, इधर से अलग, लेकिन ठीक हम यहाँ से कर सकते। ऐसे लगाया, जितनी देर आपको अच्छा लगे रखिए, फिर निकाल दीजिए। नीलम, और ये लेफ्ट नोस्ट्रल एक्टिवेट करने से भी ठीक होता है माइग्रेन, जी राइट? बिल्कुल लेफ्ट पे अगर, ये भी बहुत अच्छी टेक्निक है कि लेफ्ट को एक्टिवेट करो तो सर दर्द भी ठीक होता है, माइग्रेन, ब्लड प्रेशर भी ठीक होता है, जी हाई अगर बिल्कुल। हो तो हम कंक्लूड करते हैं। आई थिंक मैंने एक हाथ देखा था, iPhone 201। that's me, Jumar. Let's take them quickly. Jumar, Okay, can you go hear? ahead, Jumar. Hi, sorry. जी जी I ट्यूमर है। have a question. Yes. My husband had very high blood sugar. He didn't have blood pressure, but now he's having dementia. But his blood sugar is almost completely gone. Can that happen because he's not really using his brain? That's my theory. I don't know. बिल्कुल तो यही बात है जी। अगर ये सारी चीजें हम क्योर कर सकते हैं अगर हम अपने दिमाग को यूज नहीं करेंगे तो। Yeah, that's right. जी Thank yeah, you. it's a good example. Thank you for sharing, Jumar. Okay. ओके, हम खत्म करते हैं। मैं एट द एंड में कहना चाहूंगी, थैंक यू डॉक्टर अनिला फॉर अटेंडिंग, और हम आपको नेक्स्ट मंथ भी इनवाइट करेंगे। जो कलर थेरेपी है और रबर थेरेपी है वो हम डिटेल में करेंगे, सो यू गाइस कैन लर्न अबाउट इट। And as she mentioned, like she has a YouTube channel, we already put it in, and then you can check with her name. So learn something from there, practice for 1 month, and then come join our session, and then you can ask her questions, and we can do it together things. For Where is breath the work, recording? it's a YouTube recording. We will put it on the group also. Okay. So Thank this is YouTube recording. Yes, Juma. And the second thing is I want to mention,
we are from Divine Art of Yoga Center. This is how you know us, Divine Art of Yoga Center. And you know, both Baijis, they teach everything. They teach breathing, exercise. So that's how I learn, actually. That's how I learn how to learn about the breathing. And luckily, like for more further things, you know, that's why I asked Dr. Neela to come over. And if you want to practice, like she said, put your hands like that and then deep breathe in. It's not, you cannot do first time. You have to have practice. So for practice, we have an open Divine Art of Yoga Center here. You can come and join us. We have a satsang every Sunday. We have almost everyday yoga classes. And my favorite is the Wednesday, the pranayam class. So breath work, like Anila ji said, breathe in, hold, and then breathe out. So you have to practice physically. So come to the ashram, join our classes. Wednesday, we do 6 to 7. You can check our schedule, and that's an amazing class. We do sound therapy, we do stretches, we do breathing exercise, so many things. We do it together. And I can see the Baijis, both Baijis are here. Thank you, Baijis. You can unmute yourself. Your address, your Divine Yoga Center address. Yeah, we will post it in the chat box. Okay. Jignavan, can you add the our address? Thank you so much. Baijis, both Baijis are here. Thank you, thank you. You can unmute yourself. Okay. Thank you so much, Anila Ben. It was ये बहुत अच्छा सेशन था. हमने बहुत एंजॉय किया और हम आशा करते हैं कि आप फिर से जो है आपका जो ज्ञान है हम लोग के साथ शेयर करेंगे और हम सब लोग मिलकर समाज में अच्छी सेवा कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा लगा. आप एंजॉय भी किया और लर्न भी किया. बहुत बहुत अच्छा. अनिला जी, ये बहुत बाइजीज इन्होंने यहाँ पे वो डिवाइन आर्ट ऑफ योगा सेंटर चलाते हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है. मैं तो ये कहती हूँ कि हर हफ्ते मैं वहाँ जाती हूँ और अपना मिरर साफ करके आ जाती हूँ ताकि मेरे सारे सेंसर चलते रहे और फिर मेरा एंटीना चल जाता है, फिर मुझे अच्छे अच्छे लोग मिल जाते हैं, तो मैं बहुत खुश रहती हूँ. थैंक यू सो मच सब लोगों को ज्वाइन करने के लिए. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन ऑलवेज यू कैन आस्क अस, टेक्स्ट अस और ज्वाइन योगा सेंटर. आप वहाँ आए, you know, it's amazing place to come over and see. We can see both all devotee there. Ava Ben. Thank you so much. Yes, so we do Om chanting class there, everything. So please join us and put on your calendar every fourth Saturday. We do Jivanta session at 10:30 to 12. And I'm going to ask Anila ji to come next month also to do the Sajog and color therapy because I think it's really helpful. Neela ji, thank you so much for joining. Thank you, Neela ji. Thank you very much for giving us this knowledge. And today I'm going to start my knee pain things, and I will talk to you next month. Okay, how it's going on? Yeah, ये YouTube चैनल पे है. आप इसको दोबारा देखें, बार देखें और लर्न करें जो उन्होंने प्रेशर पॉइंट्स बताए हैं और लर्न करके कर सकते हैं. Thank you. Thank you so much. Thank you, Neelam, for inviting Thank you. Dr. Kothari. Thank you, Anila ji. We are very blessed and grateful for all the knowledge that you gave us today. थैंक यू. आप सबको भी बहुत धन्यवाद. आपने मुझे बुलाया और इतने अच्छे से सुना सबने. बहुत धन्यवाद. Thank you. Thank you so much again. I'll see you next month. Please join us for pranayam classes or for everything Divine Art of Yoga Center. It's a Divine Art of Yoga Centers. You can check online. Join us, and we are making a building there. You can join us to contribute also. Big opportunities. एक हाथ से लेना, एक हाथ से देना जरूरी होता है, जैसे कहते हैं.
If you eat, you have to poop also. So inside out is very important. So that's what I say. Like if you're earning, donate I for have good to go cause. to that. Thank you. Thank you so much.